Hi, hello friends. Welcome to Pulse XA. So today in this session we are going to discuss Suzuki reaction means Suzuki coupling reaction. Okay. So now without wasting our timing we are going to be started with our main reaction. So what is the major key point of this reaction? Why this chemical reaction we have to study? And what is the main purpose? And why this reaction will be most important in your organometallic chemistry part? Because in this chemical reaction we are going to be generating the carbon and carbon bond formation as a major product. And it is a one type of palladium catalyzed cross coupling reaction. That's why we are going to be considered is as a organometallic chemistry part. Okay, so these are the actually main highlighted point that why we have to study the Suzuki coupling reaction. Apart from that, it is an organic chemical reaction where the coupling partners are including your boronic acid and the organic halides. They are going to be combined together in the presence of palladium zero complex, okay, which is catalyze your chemical reaction. And this reaction is named after the Nobel laureates Japanese chemist your Akira Suzuki, who first published work on this reaction in 1979. So because of this reaction is also called the Suzuki-Maillard reaction or the Suzuki coupling reaction. Okay, so just take a look, like this will be the your organic chemical reaction. So definitely there will be the four major things that going to be introduced into this reaction. Will be the substrate. The substrate will be over here alkyl halide, so Rx. So R will be your aryl group, alkene, vinyl or alkyne group. Okay, then reagent that we are going to be used in the chemical reaction, that will be organoboron specimens. That will be your boronic acid हो सकता है या फिर ester. And apart from that we are going to be also use the base. तो यहाँ पे base का रोल होता है for the chelation purpose. So base you can use like sodium hydroxide, sodium methoxide, sodium carbonate, etc. There are lots of base are going to be utilized for the chelation purpose. And the catalyst we are going to be use the palladium catalyst in the presence of the zero oxidation state. And the product that we are going to be formed will be the carbon and carbon bond. So the coupling reaction taking place between when this substrate has to be reacted with the reagent. तो ये दोनों का जब chemical reaction होगा then we will generate the carbon and carbon bond formation. So in the presence of palladium zero complex. So what will be the general reaction? So just take a look. So these are the actually general reaction. So as you can see, these are the organoboron specimen combined with the alkyl halide. So these two partners are going to be combined together in the presence of palladium and the base, and we are going to get your final product. So what are the chemical reactions? So just take a look. This is the general example. So I am going to be take, these are the actually aryl halide. Okay, these are the your boron specimen. Okay, in the presence of palladium acetate, and the base will be taking as a potassium phosphate. In the presence of 100 degrees Celsius and the 22 R, you will get the product. So as you can see in the chemical reaction, you are just going to be removing this part. सो हैलाइड जो ग्रुप है यहाँ पर जो हमारा एक्स होगा वो Cl हो सकता है Br या फिर आयोडीन. सो दैट हैज टू बी रिमूव with this BOH2 group और ये so these actually allyl और aryl group combined together. तो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये they are going to be couple. ओके, एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट. तो ये दोनों चीज का यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है. सो फ्रॉम द ऑर्गेनोबोरॉन स्पेसिमेन, जो भी आपका बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, जो अराइल ग्रुप होगा वो नहीं, उसको छोड़ के जो ग्रुप होगा वो, और यहाँ पे हैलाइड ग्रुप में जो हमारा एक्स ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट होगा. ठीक है, combinedly and we will get here final product. So basically now these are the actually part of what your organometallic. So what will be the mechanism? So in the earlier video we already discussed this oxidative addition reaction, reductive elimination. So if you want, so I just share the link of that particular chemical reaction in the below description box. So you just check out. So I'm not going to be more wasting of the time in the mechanism part, but to convert these, when the substrate and the reagent are going to be combined together, how we will get actual this final product. So for that you should understand these three mainly steps they are going to be follow. First, oxidative addition. ना oxidative addition का मतलब यहाँ पे क्या है? Obviously you should know that oxidation होगा मतलब palladium जो zero है that should be converted into the palladium 2. Then transmetallation step and the reductive elimination step. So as you can see, this will be the organometallic cycle. अर्लियर वीडियो में मैंने आपको ये सब पढ़ाया था. सो वी आर नॉट गोइंग टू बी वेस्टिंग मोर टाइम. सो एज यू कैन सी द पैलेडियम विल बी द प्रेजेंट इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. एलएन का मतलब होता है स्टूडेंट दीज आर द लिगैंड दैट अटैच विद योर पैलेडियम कैटलिस्ट, लाइक योर फॉर एग्जांपल पैलेडियम एसीटेट. सो यहाँ पे OAC दिस विल बी द लिगैंड विच इज अटैच टू द पैलेडियम मेटल. Now you can see this palladium in the next step are going to be converted into the palladium 2. So the oxidation will be carried out over here of your metal. But what things now in the first step you are going to be add RX, alkyl halide will be what added. तो यहाँ पे palladium का insertion होगा in the
प्रेजेंस बॉन्ड जो है R और X के बीच में, तो यहाँ पे पैलेडियम आर गोइंग टू बी इंसर्शन, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड यू विल गेट दिस. सो R and X bond will be breaking over here. So that will be your first oxidative addition step. That hope so you should now understand. So basically in the oxidation of the catalytic palladium take place. So it is oxidized from palladium 0 to palladium 2. So this step is generally are going to be considered as the rate determining step of the cycle. Okay, now next what will happen in the further step? Second step will be your transmetallation step. So now in this step organometallic reaction occurs by the ligand transfer. Okay, properly सुन लीजिए, ligand transfer take place from the organoboron specimen to the palladium 2 complex. Okay, so the organoboron compound reacts with the first intermediate जो है बेस जो है उसके साथ and then with the first intermediate upon the addition of the base. So this gives another palladium 2 complex as shown over here. तो as you can see first जो बेस होगा यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है ट्रांसमेटालेशन में, as you can see the R1 ओके By3 माइनस, और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेकंड जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? सो R1 ग्रुप रिप्लेस टू ओवर एंड दिस X आर गोइंग टू बी कंबाइन विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो ये यहाँ पे मेटालेशन होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, सो फर्दर आफ्टर फॉलो द सेकंड स्टेप, थर्ड विल बी द रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप. नाउ इन द लास्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? द पैलेडियम 2 कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्स टू एलिमिनेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? ये वाला प्रोडक्ट. ठीक है, सो एंड इज कन्वर्टेड टू नाउ पैलेडियम 2 टू पैलेडियम 0 state in the form of 0 state. So thus the catalyst is again regenerated in the last step and the catalytic cycle will be ended. So this step can be illustrated as the reductive elimination step and you will get your final product. So these are the actually organic chemistry part, as you can see complete over here. But we are going to be focus on to the, if in their final examination like your NET GATE, if you are going to be prepared for that examination, so how you are going to be अप्रोच दिस पर्टिकुलर सुजुकी रिएक्शन इन द फाइनल एग्जामिनेशन. आपको कैसे पता चलेगा कि वो सुजुकी केमिकल रिएक्शन है? सो द मेन thing will be that how you are going to be boosting your rank in the final examination as soon as you are going to be looking at the example. So just take a look. Suppose these are the actually one of the famous chemical reaction which is asked into the competitive exam. ठीक है, नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था. तो देखिए ऐसे उन्होंने कंपाउंड दिया था, देन दीज आर द सेकेंड रिएजेंट दे आर गोइंग टू बी मेंशन. उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए, देन अगेन द बी, यहाँ पे सेकेंड रिएजेंट दिया हुआ है और बी प्रोडक्ट पूछा है. तो आपको यहाँ पर ए और बी क्या है प्रोडक्ट वो आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था नेट एग्जामिनेशन में बेसिकली फॉर द 4 मार्क्स. ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको करना क्या है? एज सुन एज यू विल सी ना केमिकल रिएक्शन, आपको देखना है कि बोरॉन कंटेनिंग का कंपाउंड है BH टाइप. तो ये BH को अलॉन्ग विद दैट कोई भी यहाँ पे कंपाउंड हो सकता है. आपको ये देखना है अगर ये कंपाउंड है अलॉन्ग विद दैट एनी अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो डेफिनेटली वो आपका सुजुकी केमिकल रिएक्शन है, वो आपको समझना है. और यहाँ पर बेस भी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये 2-3 चीजें अगर प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में 100% दैट शुड बी योर सुजुकी केमिकल रिएक्शन. अब जैसे कि आपको पता होगा जब हम लोगों ने ये वाला केमिकल रिएक्शन स्टडी किया था, BH3 का रोल क्या होता है? दे आर गोइंग टू बी ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. सपोज दीज आर द योर व्हाट एनी अल्किन कंपाउंड. तो हम लोग यहाँ पे BH3 का एडिशन कैसे बेसिकली करते हैं? BH2 और H, तो H प्लस. तो यहाँ पे क्या होता है? BH2 जो एडिशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा? जहाँ पर कार्बन जो होते हैं जिसका कार्बन का अटैचमेंट फर्दर कार्बन के साथ नहीं होगा, और जहाँ पे कार्बन जो ग्रुप है उसको फर्दर कार्बन अटैच है, सो मोर नंबर ऑफ कार्बन विल बी अटैच, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन को अटैच करते हैं. तो यहाँ पे एडिशन कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पर H और यहाँ पर BH2. अब देख लो इस कार्बन को फर्दर कार्बन अटैच है, बट एज यू कैन सी द कार्बन ओवर हियर. ओके, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये यहाँ पर बल्की ग्रुप है. तो जहाँ पर भी आपका बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट होगा अटैच विद द डबल बॉन्ड, जो बल्कियर ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होगा वहाँ पर बेसिकली हम लोग हाइड्रोजन को अटैच करते हैं. ठीक है, और जहाँ पे कार्बन अटैच नहीं लेस बल्की ग्रुप होगा वहाँ पे BH2 ग्रुप ऐड होगा. तो देख लीजिए हम लोगों ने रिएक्शन कंप्लीट किया, तो यहाँ पे ये ऐड हुआ, तो ये मिलेगा हमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू द सिंगल बॉन्ड एंड CH2 BH2. तो ये ऐसे हम लोग एडिशन करते हैं. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू बी ऐड नाउ दिस ग्रुप. अब यहाँ पर भी देख लो BH है, H को मुझे सिर्फ ऐड करना है, तो ये आपका टोटल फाइनल कंपाउंड है एज यू कैन सी ओवर हियर. सो आप अगर देखोगे यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों जो कार्बन है, ओके व्हाट दोनों कार्बन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन योर व्हाट ट्रिपल बॉन्ड. तो इस कार्बन के अलावा यहाँ पे कौन सा बल्की ग्रुप अटैच है? तो यहाँ पे
बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन। द एंटायर ग्रुप जो बोरॉन का जो ग्रुप है वो कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपल लाइक बेस थी, वही हमें एडिशन करना है। सो यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट। आफ्टर गेटिंग दिस, यहाँ पर आपको दिया है वाटर। अब वाटर का यहाँ पे रोल क्या होता है, जनरली स्टूडेंट को पता नहीं चलता वाटर दिया क्यों है। तो हर एक चीज का यहाँ पे रिएजेंट का रोल होता है, ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही देंगे। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर गेटिंग दिस इंटरमीडिएट, आप अगर देखोगे बोरॉन जो है सराउंडेड विद द ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए दे रिक्वायर द 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो वाटर है इसके पास क्या है, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे एकोमोडेट होते हैं द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द बोरॉन। तो ये जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा, सो यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट, आपको यहाँ पे मिलेगा। बोरॉन के साथ वाटर ना अटैच हुआ, ऑक्सीजन गेट प्लस चार्जेस एंड बोरॉन गेट्स नेगेटिव चार्जेस। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इमीडिएटली क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी माइग्रेट टू न्यूट्रलाइज द प्लस चार्जेस ऑन द हेड ऑफ द ऑक्सीजन। इमीडिएटली द बॉन्ड बिटवीन द बोरॉन एंड ऑक्सीजन गेट्स ब्रेक डाउन टू बैलेंस दिस नेगेटिव चार्जेस। एंड नाउ दिस माइग्रेटेड H प्लस जो यहाँ पे रिमूव हो वो इसके साथ कंबाइन होगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे OH फॉर्म होगा, यहाँ पर भी OH एंड दिस बोथ द चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज एंड यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। अब यहाँ पे वन मोर ऑर्बिटल लेफ्ट, तो उसको ऑर्बिटल करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, वाटर से सेकंड टाइम अटैक करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स गेट अकोमोडेट, फिर से वही मैकेनिज्म होगा एंड यू विल गेट OH अगेन ओवर हियर एंड दिस इज हाउ वी विल गेट सेपरेट आउट दिस बाय प्रोडक्ट बाय फॉलो द फर्दर मैकेनिज्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ये तो प्रोडक्ट यहाँ से निकला, हमें मिला BOH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, मैंने आपको ऐसे दिखाया, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये हुआ एक्चुअली आपका ए वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आपका ये कंपाउंड इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा, व्हाट विल बी द ए प्रोडक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सेकंड विल बी द योर करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, तो देख लीजिए ये यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, अब ए मिलने के बाद सेकंड आपको क्या दिया है, यहाँ पे हैलाइड दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या बोला था मैंने, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा पहले तो ब्रोमीन के बीच में जो कार्बन और ब्रोमीन जो बॉन्ड जो है ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा एंड पैलेडियम गेट इंसर्टेड। देन अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस बेस, दिस विल बी व्हाट ट्रांसमेटाइलेशन स्टेप विल बी टेकिंग प्लेस एंड द Br ग्रुप विल बी। तो ये हम लोगों ने देखा था, तो इतना हम लोग सब कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि Br ग्रुप शुड बी एलिमिनेटेड, जो इसके साथ चला जाएगा। तो हमें इंटरेस्ट किस में है, ओनली 3 कार्बन, 1 2 3। तो देख लीजिए ये इंसर्शन हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ट्रांस एलिमिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट क्या होगा, आप देख लीजिए, जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, जो बेस जो है, बेस का जो OH माइनस है दैट शुड बी अटैक ऑन टू द दिस बोरॉन एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड और नेगेटिव साइन। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से क्या करेगा, चार्जेस को न्यूट्रल करेगा, तो प्लस माइनस चार्जेस के न्यूट्रलाइज, दिस ग्रुप विल बी एलिमिनेट, यहाँ पे आएगा आपका माइनस चार्ज। तो दिस माइनस चार्ज अगेन व्हाट कंबाइन विद दिस हैलाइड ग्रुप और आपको यहाँ पे ये ग्रुप मिलेगा एंड दिस इज योर फाइनल बी प्रोडक्ट। तो देखोगे तो आप यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, सो दिस इज योर फाइनल बी प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। आप अगर 1 बाय 1 स्टेप पूरे फॉलो करते हो तो आपकी कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीजें याद रखने की वो कैसे रिएक्शंस को कैरिड आउट करा। सो द अप्रोच विल बी मोर इंपॉर्टेंट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। और एक चीज यहाँ पे याद रखो, अगर ये आपको यहाँ पे सी पोजीशन में है तो आपको प्रोडक्ट में वैसे ही लिखना है। सपोज अगर ये गिवन प्रोडक्ट आपको ऐसे कंडीशन में दिया होता, लाइक ऐसे, और यहाँ पे होता ब्रिया, तो ये हुआ ट्रांस, तो ये प्रोडक्ट आप ऐसे ही यहाँ पर फिर लिखते। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जिस कंडीशन में आपको अगर सीस है तो सीस लिखो, ट्रांस है तो ट्रांस लिखो। सो दीज आर द फाइनल नोटिफिकेशन अबाउट योर सुजुकी रिएक्शन। आई होप सो द बोथ द थ्योरेटिकल एंड द योर केमिकल रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि ये केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से और पता चले। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। सेम अभी मैंने जो आपको दिखाया था वो हम लोग इतने मैकेनिज्म नहीं करेंगे, वो मैकेनिज्म था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फाइनल अगर एग्जाम आते हैं ये क्वेश्चन तो आपको कैसे पता चलेगा, वो अप्रोच था, तो आपको इजीली आंसर लिखना है। अभी अब देख लीजिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप अगर देखोगे Br ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है, बोरॉन है, पैलेडियम कैटालिस्ट है, तो इससे पता चलेगा कि ये आपका कौन सा है, सुजुकी रिएक्शन है। मैंने क्या बोला था, जो बोरॉन ग्रुप है वो ग्रुप एंड हैलाइड, इसको रिमूव करना है, रिमेनिंग ग्रुप अटैच करना है। अब ये कैसे होगा, मैंने मैकेनिज्म दिखाया है, तो आप मैकेनिज्म लिख सकते हो फर्दर, बट मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहे हूँ। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फिर क्या मिलेगा। तो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म हो, मैं अलग कलर पेन से चाहिए तो दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर बॉन्ड बना, ये कंबाइन होगा इसके साथ, सो दिस इज हाउ द कार्बन। तो ये आपका होगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, तो इसका ये प्रोडक्ट। अब ये देख लो फिनाइल दिया हुआ है,
अब यहाँ पे देख लो, हर टाइम हमें यही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको बोरोनिक एसिड मिल सकता है, एस्टर भी मिल सकता है, या फिर ए से भी कंपाउंड मिल सकता है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड है या नहीं। अब देख लो यहाँ पे BH दिया है बट विद प्रेजेंस ऑफ इथाइल 2 दिया हुआ है, तो डजेंट मैटर कि आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड भी है, बेस भी है, पैलेडियम है, सुजुकी रिएक्शन है। तो क्या होगा आप सुजुकी रिएक्शन में, दिस डबल बॉन्ड जो है गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो Br जो ग्रुप है ये निकलेगा, और ए जो ग्रुप है ना यही से अटैच होगा, मतलब 1 2 3 कार्बन अटैच होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर मिला फिनाइल, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए ये हुआ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, प्रोडक्ट कौन सा 1 2 3 ना, तो देख लीजिए वही हम लोग अब अटैच करेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये जो प्रोडक्ट था ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो दिस इज हाउ यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अब यहाँ पे बोरॉन की जगह देखो यहाँ पे 9 BBN दिया हुआ है, तो ये भी आपका बोरॉन कंपाउंड यहाँ पे हो सकता है, तो डेफिनेटली ये सुजुकी रिएक्शन है। पैलेडियम Cl2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लो इतने सारे उन्होंने केमिकल दिया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ज़्यादा रिएजेंट दिए जाएंगे तो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। DMF टेट्राहाइड्रोफ्रॉम वाटर है, बट देख लीजिए पैलेडियम कैटलिस्ट से डबल बॉन्ड है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और आपको ढूंढना है कि हैलाइड दिया हुआ है कि नहीं। तो देख लीजिए ये यहाँ पे हैलाइड का ग्रुप दिया हुआ है आयोडीन के साथ, तो रिमूव कौन होगा, सिर्फ ये वाला ग्रुप, और ये जो ग्रुप है एज सच कहाँ पर ज्वाइंट होगा, यहाँ पर ज्वाइंट होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ये ग्रुप के अक्रॉस में। तो देख लीजिए डायरेक्टली हम लोग पहले तो ये ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर इजी पड़े। तो सबसे पहले तो मैं ये बना लेती हूँ। अब यहाँ पे देख लो क्या है आपका OSI Me2 एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ से हम लोग का हट गया, सॉरी आई हैलाइड, ये डबल बॉन्ड वैसे हैलाइड ग्रुप हटेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड जनरेट होगा वो यहाँ पे होगा आपका न्यू बॉन्ड। अभी इसके साथ डायरेक्टली क्या होगा, वो अटैच होगा, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पर बना, फिर ये जस्ट अ मिनट, CO2 Me, ठीक है। अब देख लीजिए चाहिए तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड जो था दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये यहाँ से आयोडीन गया, तो ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज हाउ बॉन्डिंग देखते वक्त प्रॉपरली चेक करो कि क्या कौन सी चीज़ें जा रही है, ठीक है। एक भी बॉन्ड अगर यहाँ पे आप गलत शो करते हो तो योर एंटायर आंसर विल बी रॉन्ग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दीजिए, अगेन ब्रोमाइड ग्रुप दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड है, बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड है, पैलेडियम कैटलिस्ट है, बेस है, हीट किया, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब जाएगा कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, तो ये बोरान का ग्रुप ये पूरा जाएगा, ठीक है। और इसमें से ये तो बचा कौन सा, ये वाला, यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से कौन सा, ये 1 2 3, यही ग्रुप सिर्फ क्या होंगे यहाँ पे अटैच होंगे। तो देख लीजिए पहले मैं ये वाला लिख देती हूँ फिनाइल, ये ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब ये Br तो यहाँ से चला गया, तो जो बॉन्ड बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा, अलग कलर पेन से दिखा देती हूँ, तो सिर्फ ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, देख लीजिए, और C4H9। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। तो ये आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लीजिए यहाँ पर फिर से बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्लोरीन है, दोनों निकलेगा, ये ग्रुप अटैच होगा, पैलेडियम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन, तो मिलेगा क्या, TFO Cl गया, बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर, और ये वाला जो ग्रुप है डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होगा, और यहाँ पे CH3 है। सिंपल, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो थ्योरेटिकल था वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैकेनिज्म तो आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, चाहे तो आप हर एक एग्जांपल के लिए सॉल्व करो तो मोर प्रैक्टिस होगा और अच्छे से। अब देख लो ये वेरी फेमस रिएक्शन है, रेटिनॉल बोलते हैं इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो रेटिनॉल फॉर्मेशन के लिए सुजुकी रिएक्शन विल बी वेरी फेमस रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, आयोडीन ग्रुप यहाँ से और BOH2 ग्रुप यहाँ से, तो रिमेनिंग ये जो पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप है ये अटैच होगा, दे आर गोइंग टू बी कपलिंग टुगेदर। तो यहाँ पे देख लो ये बेस है, यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट है, तो सुजुकी रिएक्शन है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है आपका रेटिनॉल। तो ये आपको दोनों को ये करना है, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब देख लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना, तो बॉन्ड दिखाते वक्त प्रॉपरली दिखा। अब अटैच कौन सा डायरेक्टली करना है आपको, ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो वो बना लो बराबर से OH, तो ये यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड द OH, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड प्रॉपरली सी कि आप बना क्या रहे हो, और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द
रेटिनॉल, ठीक है। तो आई होप सो आपको अभी तक की जितने भी मैंने केमिकल रिएक्शन सॉल्व करा के दिए हैं नंबर ऑफ रिएक्शन से, तो अगर आपको ये सारे केमिकल रिएक्शन समझ में आए हैं तो हमेशा जैसे मैं आपको होमवर्क देती हूँ तो मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दे रही हूँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड ना व्हाट विल बी द सुजुकी रिएक्शन, तो आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए। तो दिस इज योर ना होमवर्क क्वेश्चन, तो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, तो मुझे आप सॉल्व करके दीजिए। ये ऐसे यहाँ पे कंपाउंड है, देख लीजिए, पता चलेगा आपको ये केमिकल रिएक्शन कौन सा है। आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये पहला तो चेक करिए कि ये सुजुकी रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। और इसमें कैटालिस्ट रिएजेंट है, ठीक है। टेल मी द प्रोडक्ट आफ्टर reacting this both the reagent and the substrate together in the presence of palladium catalyst and the base and the solvent, what will be your final product? Comment me your final answer. Okay, so I hope so the Suzuki reaction which I am going to be explaining you over here, you should understand it completely and properly. Okay, but still if you are doubt any regarding this chemical reaction, you should definitely ask me. I definitely resolve your all the problems. Okay, so once again student, thank you so much watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us. Okay, once again thanks a lot.